Okay, class 11 microeconomics theory of supply पेज नंबर अपने साथ से देख लेना. Price elasticity of supply. I am teaching. In the last class I talked about increase or decrease in supply या फिर extension and contraction of supply. Increase and decrease happens because of other factors than price, and extension and contraction happens because of the change in own price of the commodity. Now we will be talking about price elasticity. Now what is elasticity? Elasticity का मतलब होता है कोई भी चीज का खिंचना. Now in case of supply, अभी कोई चीज सप्लाई मैंने एक ग्राफ ऐसे बनाया, एक ग्राफ ऐसे बनाया, एक ग्राफ I made like this and one graph I made like, ठीक है, समझ में आया? चार इलास्टिसिटी होती है. इन दिस केस शायद आप कितनी भी प्राइस चेंज करते रहो, नीचे क्वांटिटी आती है ऊपर प्राइस आती है, आप कितनी मर्जी प्राइस चेंज करते रहो, विल देयर बी एनी चेंज इन क्वांटिटी? तो क्या इलास्टिक हुआ ये? इलास्टिसिटी विल बी जीरो. नॉट एट ऑल. नाउ कम है, इन दिस केस प्राइस ऑल्टरनेटिव में जितनी चाहो उतनी मल्टी क्वांटिटी बेच सकती हूँ. दिस इज परफेक्टली इलास्टिक. नहीं, परफेक्टली इलास्टिक इज इसकी इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है, अंडरस्टैंड? दिस इज परफेक्टली इलास्टिक. इन दिस केस मेरी प्राइस यहाँ से यहाँ, तो मेरी सप्लाई में देखो आप कितना चेंज आएगा. प्राइस वाज जस्ट इतना सा and supply increased this much. So elasticity is more than one. Elasticity is more than one. In this case, अगर मेरे प्राइस में ज़्यादा भी चेंज आता है, तो supply will change very little. In this case, elasticity is less. This is what elasticity is. ठीक है, कि प्राइस के चेंज होने की वजह से मेरी क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है. Yes. Second one. Then what is one? Yes, this is infinity to be rotated, right? Infinity होता है. Okay, the perfect constant वाला is one. So if this is the case, constant जितना increase price में उतना increase supply में, this is elasticity is equals to 1. Repeating again, in case of perfectly elastic supply, जो मतलब आप प्राइस कांस्टेंट रहेगा, जितना मर्जी क्वांटिटी बेचते हो, इलास्टिसिटी विल बी इंफिनिटी. एंड इन केस देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीज, जितनी प्राइस उतना क्वांटिटी, देन इलास्टिसिटी विल बी इक्वल्स टू 1. लेट्स रीड इट. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इन रिस्पांस टू अ गिवन चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. खुद की प्राइस चेंज होती है, उसकी वजह से आपके सप्लाई में इफेक्ट. लॉ ऑफ सप्लाई में बताता है कि जो सप्लाई will change when the own price will change. जितना own price होगा, a fall in price will lead to contraction of supply. Increase in price will lead to extension of supply. But if you want to measure the extent, अगर हमें ये देखना है कि कितना extension होगा और कितना contraction होगा, उस चीज के लिए हम price elasticity पढ़ते हैं. So price elasticity of supply measures the degree of extension and contraction. So as जो भी हमने बात करी थी कि this is the supply curve and the supply is moving from here to here, तो कितना move करेगा इधर और इधर, this is known as extension or contraction. Degree of extension और contraction, उस चीज को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? Price elasticity of supply. Measurement कैसे करी जाती है price elasticity of supply के? दो मेथड्स हैं आपके, एक होता है प्रोपोर्शनेट मेथड और एक होता है ज्योमेट्रिक मेथड. There are two well-known methods of measuring price elasticity of supply: proportionate method or geometric method. First is proportionate. According to this method, elasticity of supply is the ratio between percentage change in quantity and percentage change divided by percentage change in price. So now that is delta Q upon delta price. In case the price in quantity, price increased from 5 to 10% and quantity increased from 50 to 75. ठीक है, price from 5 to 10 and 50 to 25. Percentage without
100% इंक्रीज हो गया ना, ये तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? परसेंट ऑफ चेंज कितना है? 100 and in this case 50. Now this will be 50 divided by 100. That will be 1 by 2. That is 0.5, which is E elasticity is less than 1. Elasticity will be less than 1. समझ में आया? This is the way to take out proportionate method, percentage method, जिसमें आप delta Q percentage upon delta P की change in price. Velocity of supply is percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. अब आप इसको इन्होंने जो मेथड सिंपलीफाई किया है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेट्स अंडरस्टैंड दैट आउट एज वेल. ये कह रहे हैं आप जो परसेंटेज, जैसे अभी ये तो सिंपल है, वैल्यूज थी आपने निकाली 50%, 100%, बट इन केस 125, 300 ऐसा कुछ नंबर लिखा जाएगा तो परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम होगी ना. सो इन दैट केस वन थिंग यू कैन डू इज यू कैन राइट डेल्टा Q अपॉन Q ओरिजिनल वाला. दिस इज चेंज इन Q, दिस इज न्यू Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P, दैट इज द चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस. परसेंटेज में करना है into 100 into 100. चलो अभी ये लगा के देखो. चेंज इन प्राइस कितना है? 5. ओरिजिनल प्राइस 10 into 100 divided by change in price 25. ओरिजिनल प्राइस 50. मैम 75 वो आपने ऊपर 10 दिया. नहीं इनिशियल लिखना होता है. इनिशियल तो यहाँ पे 5 है, ये वाला से इनिशियल लिखना होता है. ठीक है, दैट इज इनिशियल प्राइस. इसमें कोई बच्चा वैक्सीनेशन के लिए तो नहीं बचा है? ओके, सो समझ में आया? इनिशियल लिखना होता है. मैंने सही उसमें ऊपर वाला लिखा था, यहाँ से तो दिस इज कट जाएगा 100 1 by 2 into 100 50. सेम चीज आ गई. नो उल्टा हो गया ना ये तो. डेड सेंटर कैंसिल कर दीजिए. हाँ तो 100 हाँ, दैट इज क्लियर. समझ में आया? सो इज इक्वल टू, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो जैसे इतना करने की बजाय यू कैन आल्सो राइट डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी. सो दिस इज द फॉर्मूला. अगर आपको इजीली परसेंटेज निकल जाए देन वेल एंड गुड. नहीं निकले ऐसे कर लो, ऐसे नहीं हो. ओके, सो मूविंग ऑन. फिर होता है आपका ज्योमेट्रिक मेथड. ज्योमेट्रिक मेथड वही मेथड था जिससे मैंने आपको भी 5 ग्राफ बना के समझाए थे. जिसमें मैंने आपको 5 ग्राफ बना के समझाए थे. Geometric method is that only when you are using a graph. So elasticity is equals to 1 जब there is a positively sloping demand curve or supply curve, which means upward तो movement होगी. Elasticity is equals to 1 क्योंकि constant है. जितना हो उतना ही आपकी quantity मिलेगी. This is elasticity is equals to 1. Elasticity is more than 1 in case of ये क्या होता है? Elasticity will be more than 1 for a flatter curve. Elasticity will be less than 1 for a steeper curve. इस केस में क्या होगा? More than 1 हो गया ना, ये देखो. ज़्यादा extension ज़्यादा है इसकी. It is more than 1. In this elasticity is more than 1. In this case, if the supply curve is this, elasticity is less. Elasticity is less than 1 and फिर आपका elasticity is equals to 0. कोई elasticity नहीं है and then elasticity is equals to infinity. Perfectly elastic. Okay, now factors affecting elasticity of supply. ये सबको समझ में आ गया? इसमें कुछ भी और नहीं है. I have explained you already. Next is factors affecting elasticity of supply. नेचर ऑफ इनपुट्स यूज, यानी कि आपने क्या इनपुट्स का इस्तेमाल किया है. जैसे कि द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इनपुट्स यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी. अगर आपने कॉमनली अवेलेबल इनपुट्स को यूज किया है तो सप्लाई इलास्टिक होगी. मतलब
कॉमनली अब आपको कोई चीज जैसे कि गोल्ड कुछ रेयर चीज को यूज करोगे तो आप उसकी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी पे ही तो प्रोडक्शन कर पाओगे, तो दैट आपकी सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी। बट अगर आपने नॉर्मल जो कि इजीली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स का यूटिलाइज किया है तो इन दिस केस आपकी सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होती है। इफ इनपुट्स यूज्ड आर नॉट कॉमनली अवेलेबल, सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट्स जैसे कि द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is significantly influenced by natural constraints. If we wish to produce more teak wood, मतलब नेचुरल चीजें, अभी पेड़ होना, लकड़ी होना, दिस इज तो नेचुरल ना। मैं चाहूँ मुझे बहुत सारी लकड़ी चाहिए, मुझे बहुत सारा सैंडलवुड चाहिए, मुझे बहुत सारा वो चंदन चाहिए, तो प्रेजेंस नहीं है, उसकी नेचुरल कॉन्स्टेंट है, नेचुरली वो अवेलेबल ही नहीं है, मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर पाऊंगी। So these are your natural constraints. The supply of teak wood will be therefore less elastic. Less elastic हुई ना, नो मैटर आप कितनी मर्जी प्राइस कर दो, जब मेरे पास वो अवेलेबल ही नहीं है तो मैं उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस। एंटरप्रेन्योर्स को कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक, कम रिस्क लेना चाहते हैं तो सप्लाई विल बी लेस। कमोडिटी का नेचर कैसा है, जैसे कि हमने उस दिन पेरिशेबल गुड्स की बात करी थी। जो पेरिशेबल गुड्स यानी कि वो गुड्स जो खराब हो जाते हैं आसानी से, जो पेरिशेबल गुड्स हैं, अब दूध है, सब्जियां हैं, मैं चाहकर भी इनको रख नहीं सकती हूँ ना, ये खराब हो जाएंगी समय के साथ, तो मुझे इनकी डिमांड इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक। मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से मैं इनकी क्वांटिटी को ऊपर नीचे नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अगर सामान मुझे कॉस्ट प्रोडक्शन सस्ती पड़ेगी तो मैं ज्यादा इलास्टिक सप्लाई होगी, और प्रोडक्शन महंगी पड़ेगी तो सब इलास्टिक कम। टाइम फैक्टर, जितना ज्यादा टाइम पीरियड हो गया द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई। जितने ज्यादा समय के लिए मैं रखूंगी उतनी ज्यादा, बिकॉज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फैक्टर्स इजीली अवेलेबल होते हैं और सप्लाई को आप आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई लेस इलास्टिक होगी इन केस द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। अगर आपने कॉम्प्लेक्स और महंगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है तो आपकी सप्लाई कम इलास्टिक होगी, और अगर सस्ती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है तो मोर। दैट्स इट फॉर थ्योरी ऑफ सप्लाई। द चैप्टर इज ओवर। इसमें हमने थ्योरी व्हाट इज सप्लाई पढ़ा, डिमांड शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल के बारे में पढ़ा, सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ा, सम एक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस पढ़ी, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, डिटर्मिनेंट्स या फिर फैक्टर्स ऑफ सप्लाई पढ़े, प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा, इंक्रीज डिक्रीज एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, एंड देन सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके।